Yes, good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, attendance is very less. Huh? Only 9 students have joined. कुछ है क्या आज? कि morning से attendance is less. Yes, Shoaib Patel. In the previous lecture, how many students were there? Shoaib Patel. Yes, anyone knows how many students were there in the previous lecture? Yes. Shahajat. Ma'am, 12, 13. 12, 13 students were there. Okay, in our class now 9 students. Okay, let's start. They will join. Yes. Okay. In the last lecture, which control we have covered, students? Yes, in the last lecture, which control we have covered? Navigation. Yes, navigation controls. Okay, navigation controls we have covered in the last lecture. Okay, what is a navigation control? Which are the navigation controls and what is the use of navigation controls, students? Yes. चलो बताओ जल्दी से. What is the use of navigation controls? हाँ, बोलो. एक इमेज होता है मैम, तो उसको मतलब मूव कराने के लिए मैम. Okay, yes, good. And which are the types of navigation controls? मैम preview और menu control और shift map control. Yes, very good. Okay, so these controls we have completed in the last lecture, navigation controls. Okay, reach controls also we had covered, list controls also we had covered. Okay, then basic control label text box, those controls also we have covered in the previous lectures. So we have covered almost so many controls. Okay, so all of you must know the controls name, controls purpose, okay, methods and properties, okay, and use of that controls. These basic knowledge must be known by every students, okay, in 5th semester. Okay, so you have to know about the name of all the controls, use of that controls, okay, how to use that controls, which are the properties, which are the methods. Okay, itna to every student must know about the controls, okay, which are the main properties, which are the important properties, which are the unique property for every control that every student must know. I will ask the question regarding all this, okay, about the controls. Okay, so in MCQ maybe this type of questions जो है कि what is checkbox list, okay, या तो फिर which properties used for which purpose. Okay, so ये सारे questions I will ask in the MCQ. Okay, so now today we will start with the new controls. Okay, user controls. Okay, user controls. Today we will first of start the user controls, then we will learn the validation controls. Okay, then we will learn the validation controls. First of all, we will go with the user controls. Yes, याद है किसी को what is user controls? In the types of files में .ascx extension था, then at that time I told you what is .ascx file. What is user control? Anyone can say? What is user controls? मैंने थोड़ा सा आपको basic knowledge I told you in that lecture. याद है किसी को? Okay. User controls. Okay, user controls is similar like user functions. Okay, user functions जैसा user control is similar to user functions, but in user functions we will create the function, then we call that function. So same for this is used, but for the designing. Okay, user control is used for user defined designs, means we will create the design once and then we can reuse that design, reusability of the design. Okay, so user controls are used for reusability of the design. Okay, a function, you know, user function, you know, it is a user function. You have made the one function, okay, and whenever you want that function, you just call that function, and that is a user defined function. That is a user defined function. Okay, so but in that function we cannot do the designing, we can write only coding.
Okay, but in the .NET there are user control is available. This facility is available through which we can design our web page, okay, once, and then we can reuse that design again and again. Okay, we can reuse that design again and again. So that is a user control. Okay, a user control is a reusable page, okay, or control with an extension of .ascx and created similar to an ASPX page. But the difference is that the user control does not render on its own. It requires an .aspx page to be rendered. Okay, a user control is a reusable page or control. Okay, क्या है? A user control is a reusable page. Okay, और control. What is control? मतलब क्या? Label, text box, all are the controls. जो भी हम लोग पढ़ रहे सब क्या है? Controls है. Okay, so we can design our page once and then we can use that page again and again. So that is the use of user control. So extension of user control file is .ascx. .ascx. Generally, we have the extension of web designing pages .aspx. Okay, aspx मतलब design page. .cs मतलब code file page. Okay, .ascx मतलब user control page. Okay, so we will take one user control page. Okay, and then we will design on that page and then we can call that page on the ASPX page. हम लोग किस पेज में उसको कॉल करेंगे? .ascx पेज में हम लोग कॉल करेंगे. ये जो यूजर कंट्रोल पेज जो है that you cannot run डायरेक्टली. ओके, आप यूजर कंट्रोल पेज को डायरेक्टली रन नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज जो डिजाइन आपने बना के रखा है वो डिजाइन आप कोई डिजाइनिंग पेज में .ascx पेज में उसको क्या करोगे? कॉल करोगे. हाउ टू कॉल आई विल टेल यू. बट जो आप डिजाइनिंग पहले करके रखोगे वो डिजाइनिंग डायरेक्टली रन नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज दैट डिजाइनिंग वी विल डू इन द यूजर कंट्रोल पेज में. वो पेज का एक्सटेंशन होगा .ascx. ये वाला एक्सटेंशन वाले पेज में वी विल डू द डिजाइनिंग. Okay, we will do the designing in this page .ascx and we cannot run this page directly. Why? Because हम लोग क्या करेंगे? जो डिजाइनिंग बना के रखा है उसको हम लोग को किसमें रन करना होगा? .aspx एक्सटेंशन पेज, वेब पेज में हमको रन करना होगा. Okay, so we will do with the example, then you will get the clear idea. Yes, user controls are very useful to avoid repetition of code for similar requirements. Okay, suppose I need a calendar control in my application with some custom requirements in multiple pages, then instead of creating the control repeatedly, you can create it once and use it on multiple pages. जो मैंने आपको बताया. Okay, if you require any type of designing again and again, what you will do? You will make that design once and then you can call that designing or you can reuse that design. Okay, whenever you want. What are the key points you have to remember regarding this control, user control, regarding which points you have to remember? So the first is the user control page structure is similar to .aspx page, but a user control does not need to add an entire HTML structure such as body, head and form. Okay, हम लोग मैं भी आपको दिखाती हूँ. First of all, we have to add one new item. Which item? User control page we have to add. ये जो पेज है that is similar to आपको ASPX पेज जैसे ही दिखेगा, but उसमें HTML structure जो है source code में that are not in that page. Okay, a user control has extension क्या है? .ascx. Okay, .ascx is extension of that page. A user control is derived from the user control class. Okay, whereas .aspx page is derived from the page class. Okay, जो हमारा वेब डिजाइनिंग पेज जो है .aspx जिसमें हम लोग डिजाइनिंग करते हैं that is derived from the page class. Okay, and अब जो हम लोग ये बनाएंगे डिजाइनिंग, यूजर डिजाइनिंग जो हम लोग बनाएंगे it is derived from user control class. A user control does not render on its own. Okay, मतलब we cannot directly run this page. User control page को हम लोग directly run नहीं कर सकते. It needs an .aspx page. Okay, it needs .aspx page. उसको हमको क्या करना पड़ेगा? Every time we have to call this user control page को .aspx page में. To use a user control page in ASPX page, you need to register the control in the .aspx page. Okay, अगर आपको ये जो यूजर कंट्रोल पेज जो यूज करना है इन ASPX पेज में, तो आपको उसको पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रजिस्टर दैट पेज. ओके, तो steps given to you. Okay, we will do the example. ये एग्जांपल हम करेंगे. ओके, सी पहले हम थियरी दिखाती हूँ, देन वी विल डू द प्रैक्टिकल. ओके, देन हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक, हमको क्या करना है? एक पेज वी हैव टू टेक. कौन सा पेज? वेब यूजर कंट्रोल पेज. ओके, वेब यूजर कंट्रोल पेज हमको लेना है.
कैसे करना है, जैसे हम लोग वेब पेज ऐड करते हैं वैसे ही। ओके तो सी ओके देन पेज ले लिया, देन ऑन दैट पेज यू कैन डू द डिजाइनिंग वॉट एवर यू वांट। ओके आपको जो भी डिजाइन रिपीट करना है बार बार, जैसे आप एक बार फंक्शन एडिशन का फंक्शन बना के रखते हो, वैसे आपको जो डिजाइनिंग बना के रखना है, यू विल मेक दैट डिजाइन ऑन दैट पेज डॉट ASCX एक्सटेंशन पे, यू विल मेक दैट पेज। ठीक है, पेज बना दिया, उसमें कोडिंग भी कर दिया, whenever यूजर विल क्लिक ऑन दैट सेव बटन, तो लेबल में क्या होना चाहिए, वो डिस्प्ले होना चाहिए टेक्स्ट। तो ये डिजाइनिंग बार बार आपको जरूरत पड़ रही है तो आपने से बना के उसका कोडिंग करके रख दिया। ओके नाउ when you will run that page ना .ascx पेज, जब आप डायरेक्टली रन करोगे तो it will not run, एरर आएगा। ओके the error will come, कौन सा, the server error in creating user control, means we cannot run this page, यूजर कंट्रोल पेज हम लोग डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज हमको ये पेज किसमें यूज करना है, हमारे ASPX पेज में। ओके तो हाउ टू ऐड ASPX पेज, तो जैसे राइट क्लिक करते हो, ऐड न्यू आइटम में जाके ASPX पेज ऐड करो, देन वो पेज का जो सोर्स कोड है, इन दैट सोर्स कोड यू हैव टू रजिस्टर दिस कंट्रोल्स, आपको कंट्रोल्स रजिस्टर करना है। तो व्हाट इज द सिंटैक्स, तो दिस इज अ सिंटैक्स। ओके हाउ टू रजिस्टर, तो रजिस्टर सोर्स src इज एट्रीब्यूट, देन वो पेज का नेम, कंट्रोल यूजर कंट्रोल पेज का नेम करो, टैग प्रीफिक्स जैसे ASP और व्हाटएवर सर्वर हम लोग लेते हैं सोर्स कोड में, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, सॉरी उसका टैग प्रीफिक्स क्या होता है, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, देन वो कंट्रोल का नेम, तो हमने यहाँ पे टैग प्रीफिक्स दे दिया UC एंड वो टैग का नेम दे दिया स्टूडेंट इज अ टैग नेम। ओके देन आप उसको क्या करना है, आपको रजिस्टर किया। ओके ऐसे रजिस्टर किया, देन आपको उसको कंट्रोल को वेब पेज में जहाँ पे भी आपको पुट करना है, यू कैन पुट लाइक दिस के ASP, हम लोग जनरली क्या लिखते हैं ASP, तो यहाँ पे हम लोग यूजर कंट्रोल, हमारा कंट्रोल, तो उसको हमको नेम दिया था UC, कंट्रोल को नेम दिया था स्टूडेंट। ओके एंड यूजर इज अ प्री टेक्स्ट दिया था, उसका आईडी जो भी देना है रन एट सर्वर, तो आपका जो पेज जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है चलो प्रैक्टिकल करते, देन यू विल गेट द आइडिया। यस ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड, कौन सा पेज ऐड करना है हमको, यूजर कंट्रोल पेज वी हैव टू ऐड, विच पेज वी हैव टू ऐड, यूजर कंट्रोल। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज ASPX पेज, ये कौन सा पेज हमारा, सी स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज के जो टाइप्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कहाँ पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, विच फाइल वी आर एक्स्ट्रा एडेड, ओके उसको कैसे इंपोर्ट करें, कैसे यूज करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो केयरफुली देखो, इफ नहीं समझ में आ रही, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो यू कैन आस्क मी। ओके इन बिटवीन मुझे पूछ सकते हो मैम आप ये क्या कर रहे हो, कहाँ से ऐड किया, क्या कर रहे हो। ओके तो ये डाउट क्लियर होगा, अदरवाइज तो ऊपर से जाएगा सब। ओके सो सी दिस इज ASPX पेज है। ठीक है ये सिंपली जैसे हम लोग, दिस इज आवर वेब पेज। ओके ये हमारा वेब पेज है, तो यहाँ पे क्या करना है, चलो यहाँ पे हम कुछ तो थोड़ा टाइप कर देते हैं, यू कैन ऑल्सो टाइप डायरेक्टली। ठीक है विदाउट कंट्रोल भी आप टाइप कर सकते हो, दिस इज AWP lecture, okay this is AWP lecture, चलेगा चलो स्मॉल। ठीक है तो एक पेज, एक सिंपली वेब पेज जैसा है वैसा हमने कर दिया। ओके नाउ पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिजाइनिंग, वी हैव टू मेक वन डिजाइनिंग। ठीक है यूजर कंट्रोल डिजाइनिंग हमको बना के रखना है, तो वेयर वी हैव टू मेक दैट डिजाइनिंग, जैसे आप लोग पहले फंक्शन बना के रखते हो, तो आप फंक्शन कहाँ पे बनाते हो, आउटसाइड द मेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सी लैंग्वेज रिफर करें, तो इन सी लैंग्वेज में व्हाट यू विल, क्या करोगे आप सी लैंग्वेज में, पहले यू विल मेक दी फंक्शन, आप पहले फंक्शन बनाते हो, कहाँ पे बनाते हो, आउटसाइड द मेन फंक्शन के बाहर आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हो। ओके तो सेम ये पहले हमको यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए फंक्शन बनाना है, तो डिजाइनिंग के लिए फंक्शन हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, इन द यूजर कंट्रोल्स पेज में। ओके तो वी हैव टू टेक वन वेब यूजर कंट्रोल पेज, सी यूजर कंट्रोल। ओके यूजर कंट्रोल पेज कौन सा फाइल है, वेब यूजर कंट्रोल, उसका एक्सटेंशन देखो .ascx, क्या एक्सटेंशन है .ascx। ओके तो दिस इज अ यूजर कंट्रोल पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड दिस पेज। ठीक है आपको ये पेज ऐड करना है, व्हाई, क्योंकि हमको एक डिजाइनिंग रेडी करके रखना है। ओके वो डिजाइनिंग रेडी करने के लिए, यूजर डिजाइन, यूजर डिफाइंड डिजाइन रेडी करने के लिए वी हैव टू टेक दिस कंट्रोल, विच कंट्रोल, वेब यूजर कंट्रोल। So web user control one dot extension is dot ASCXC extension. Okay, now I am adding this. Okay. Okay. See, ठीक है डॉट ASCX एक्सटेंशन वाला पेज, ओके यूजर कंट्रोल पेज है,
तो यहाँ पे दिस इज डिजाइन, सो दिस इज डिजाइन एंड दिस इज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे HTML कंटेंट नहीं है, उसमें लिखा हुआ था ना कि इन द यूजर कंट्रोल पेज में देयर इज नो HTML कंटेंट, HTML बॉडी वगैरह कुछ नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग डिजाइन में जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग कर लेंगे, जो भी डिजाइनिंग आपको रिपीट करना है एवरी पेज में, ASPX पेज में, इन वेब पेज में, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आई एम टेकिंग वन लेबल, अगेन सेकेंड लेबल, थर्ड लेबल, ओके, देन ओके, चलो पहले इसको आई एम अरेंजिंग दिस, इसको अरेंज कर दिया। now label, now I am taking one text box, where is text box, ओके, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले रही हूँ मैं। ओके, देन यहाँ पे एक बटन ले रही हूँ, टेकिंग वन बटन हियर। ओके, व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन, तो जो भी नेम एंड जो भी हम लोग करवाएंगे दैट शुड बी प्रिंटेड इन दिस लेबल। ओके, जो भी डिजाइनिंग हमने किया ना ऑटोमेटिक सोर्स कोड में आ गया। ओके ओके, तो नाउ थोड़ा सा हम लोग इसको वी आर सेटिंग द प्रॉपर्टीज फॉर ऑल दिस कंट्रोल। ओके, ये समझ में आ रहा है ना क्या करें हम लोग, व्हाट वी आर डूइंग स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग? यस, बताओ कौन, मुझे हम लोग क्या करें, कौन बताएगा? अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम डूइंग नाउ? अगर आप आंसर नहीं दोगे देन आई विल कंसिडर कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से सब जा रहा है। मैम लेबल का टेक्स्ट नेम चेंज कर रहे हैं मैम। यस, ओके, लेवल का टेक्स्ट नेम वी आर चेंजिंग, बट इन विच पेज, कौन से पेज में हम लोग कर रहे हैं, कौन से पेज में हम लोग कर रहे हैं? कौन से पेज में हम लोग कर रहे हैं? .ascx पेज में। कौन से पेज में हम लोग कर रहे हैं? .ascx पेज में। ठीक है, तो दिस इज ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे आप पहले बना के रखते ना, वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन डिजाइनिंग बना के रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम लोग डिजाइनिंग बना के रख रहे हैं। ठीक है, वी आर मेकिंग द डिजाइनिंग, हम लोग एक बार डिजाइनिंग बना के रखेंगे पहले, देन वी विल कॉल दिस डिजाइनिंग ऑन एवरी पेज इसमें। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एवरी पेज में उसको वी विल कॉल। थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देती हूँ तो हमको समझ में आएगा। ओके, नाउ बटन पे आई एम राइटिंग ओके वगैरह जो भी आपको। ओके, मैं बटन पे भी कोडिंग करके रखते हैं हम लोग। ओके, तो कोड पेज विल बी देयर। ठीक है, कोड पेज होगा .asx कंट्रोल के लिए। ओके, तो कौन सा लेबल है ये, दिस इज लेबल 4। तो यूजर जब बटन पे क्लिक करेगा तो इन लेबल 4, इन लेबल 4 डॉट टेक्स्ट में डिस्प्ले होना चाहिए your name, text box 1, dot text. Okay, plus your city, जो भी आपको टाइप करना है। ठीक है, your city, your city plus
टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमको हाफ ही टाइप करना पड़ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स 2 text टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ओके, चलो ओके, मतलब क्या किया हम लोगों ने, जब व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन ना, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो है दैट विल बी प्रिंटेड इन लेबल 4। ओके, दिस इज लेबल 4। तो एक डिजाइनिंग हमने करके रखा है। ओके, किसमें करके रखा है, डॉट ASCX में। ओके, वी हैव टेकन दी वन डॉट ASCX पेज। ओके, उसमें हमने हमारा डिजाइन बना के रखा है। नाउ ये डिजाइन को हमको यूज करना है। ओके, ये डिजाइन को हमको यूज करना है इन अनदर कोई वेब डिजाइनिंग पेज में, मतलब इन विच पेज, ASPX पेज। अब देखो डायरेक्टली अगर इसको मैं रन करूंगी ना, तो दिस पेज विल नॉट रन डायरेक्टली, ASPX पेज आई एम रनिंग। ओके, तो ये पेज कभी डायरेक्टली रन नहीं होगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। वी कैन नॉट रन दिस पेज डायरेक्टली, ठीक है, ये पेज कभी डायरेक्टली रन नहीं होगा। वाई, बिकॉज हमने अभी डिजाइन बना के रखा है, इसको हमने कोई भी ASPX पेज में रजिस्टर नहीं किया। ओके, ऑलवेज ASPX पेज विल बी रन। कौन सा पेज रन होगा, ASPX। वाई, बिकॉज दैट इज अ डिजाइन पेज, डिजाइन ही रन होगा ना ऑलवेज। दी आउटपुट, राइट। तो हमने अभी क्या किया है, आपको याद रखना है कि पहले हमने यूजर कंट्रोल करके पेज ऐड किया। हाउ टू ऐड दैट पेज, ऐड न्यू आइटम में जाके, ठीक है, ऐड यूजर कंट्रोल पेज, द एक्सटेंशन ऑफ दिस पेज इज डॉट ASCX पेज। तो ये पेज हमने लिया है, उसमें हमारा एक डिजाइनिंग जो है वो हमने रन करके देखा, रन मतलब सॉरी, डिजाइनिंग जो है वो हमने करके रखा है। ठीक है, नाउ वी आर रनिंग दिस पेज। व्हाई, क्यों उसको हम लोग रन करें, ये डायरेक्टली रन नहीं होगा, बट तो भी आपको मैं दिखा दूं कि ये डायरेक्टली रन नहीं होगा, वो दिखाने के लिए आई एम रनिंग दिस पेज। ओके, एरर आएगा। ओके, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस पेज, एरर। क्यों, क्योंकि हम लोग कंट्रोल पेज जो है डॉट ASX पेज को वी कैन नॉट रन डायरेक्टली। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ यूजर कंट्रोल डिजाइन है। ये डिजाइन को हमको कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, कहाँ पे वी हैव टू कॉल दिस पेज इनटू दी डॉट ASPX पेज में, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो वी विल कॉल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि व्हाट इज द एरर। ठीक है, एरर क्या आएगा कि सर्वर ये जो यूजर कंट्रोल है वो रन नहीं होगा। ठीक है, yes, how was your class test of AWP? स्कोर तो सब लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। Everyone has, यस मैम, अच्छा था क्लास टेस्ट। वैसे ही क्वेश्चंस होगा इन दी MCQ। ठीक है, इतना कोई बट मैम थोड़े थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, समझ में नहीं आ रहे थे। नहीं आया। ओके, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, मुझे याद करवाना, हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे वो। ओके, मुझे याद करवाओ। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर। आज प्रैक्टिकल है तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस। एरर ही आएगा, एरर ही एरर ही आएगा। ठीक है, वो रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वेब
sorry, user controls जो है, user controls we cannot run directly. Okay, user control page dot asx extension page we cannot run directly, but वो आपको दिखाने के लिए मैं रन कर रही हूँ, बाकी आएगा तो एरर ही आएगा. ओके, इसका आउटपुट क्या होगा, एरर ही आएगा. ओके, बट जब देखोगे तो आपको ऑलवेज याद रहेगा, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ. ऐसे बोलूंगी तो आपको ऊपर से जाएगा. ओके, सो आई एम रनिंग दिस पेज का. तो कोई भी चीज दिखा हुआ रहता है तो आपको वो याद रहता है कि नहीं, यस ऐसा कुछ मैम ने किया था. सो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ. थोड़ा टाइम जाएगा तो चलेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द कंसेप्ट. टेकिंग वेरी टाइम. वेट, अब इतना वेट किया तो वेट फॉर 2 मिनट्स के लिए वेट करो. जब तक इसको रन नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट अपडेट इन द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में. उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमको डिबगिंग स्टॉप करना पड़ेगा. तो प्लीज उसको रन ही होने दो. एरर के लिए इतना टाइम लगा रहा है. यस, जो प्रैक्टिकल लिस्ट, जो आपका प्रैक्टिकल लिस्ट इज गिवन इन योर सिलेबस. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हिच प्रैक्टिकल यू हैव टू परफॉर्म एंड रिटर्न इन योर जर्नल. ठीक है, तो वो करो साइड बाय साइड. ओके, वो लास्ट बताया था मैंने, प्रैक्टिकल 1 to 4 यू हैव टू कंप्लीटेड. ओके, किसके जिसके पास सिस्टम है दे विल रन. ओके, सिस्टम है वो लोग रन करोगे, जिसके पास सिस्टम नहीं है दे विल राइट. ओके, सिस्टम में वो लोग रन करके आउटपुट जो है, सोर्स कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करोगे वर्ड फाइल में. ओके, एंड देन लास्ट में सारे प्रैक्टिकल्स खत्म होने के बाद वो वर्ड फाइल का यू विल मेक द पीडीएफ. ओके, एंड यू हैव टू सबमिट दैट पीडीएफ एट द टाइम ऑफ वाइवा. एंड जिनके पास सिस्टम नहीं है दे विल राइट. Okay, they will write the code in your notebook. Okay, draw the output. अब estimate कर सकते हो ना what will be the output. So draw the output in your notebook, and सारा practicals खत्म होने के बाद then उसका फोटो निकाल के you will make the PDF. Okay. Okay, चलो ये इसको ज्यादा ही टाइम ले रहा है. Okay. एक बंद कर देती हूँ, एक ही रखती हूँ. Why the home page क्यों रन हुआ? Wait, होम पेज क्यों रन हुआ? बेटा वेट वेट, वेट स्टूडेंट.
Why the home page is running? Home page क्यों रन हो रहा है? अगर हम लोग ये फाइल अपलोड कंट्रोल पेज रन करें तो एकदम this is a file upload control page, okay, that we have made in the last lectures, previous lectures किसी में बनाया होगा हमने, ठीक है। वेट इसको रन करके देखते हैं। होम पेज क्यों आ रहा है रन करते हैं? फाइल अपलोड example.aspx पेज रन हो रहा है तो इसमें इश्यू नहीं है, वो एरर शो नहीं कर रहा है बट रन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूजर कंट्रोल पेज जो है इसमें यूजर कंट्रोल पेज जो है, ओके, तो वी कैन नॉट रन दिस पेज डायरेक्टली, इसलिए वो होम पेज डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। वी कैन नॉट रन दिस पेज डायरेक्टली, ओके। तो एरर इंस्टेड ऑफ एरर इट इज रिटर्निंग दी होम पेज जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का, वो होम पेज डिस्प्ले हो रहा है, एरर वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। बट अब देखो जिसको मैंने रन किया तो वो डायरेक्टली रन नहीं हो रहा है। नाउ वी विल रन दिस पेज थ्रू दी एनी यूजर, कोई भी .aspx पेज में उसको हम लोग रन कर सकते हैं, उसके थ्रू डायरेक्टली हम इसको रन नहीं कर सकते। मैंने इसको रन करने के लिए ट्राई किया तो क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, होम पेज आ रहा था, ठीक है। ब्राउजर में वो पेज का नेम ही नहीं दिखा रहा था। व्हाई? बिकॉज दिस इज .aspx फाइल। इफ यू वांट टू यूज दिस डिजाइन इन एनी aspx पेज तो यू कैन यूज, ओके। तो सी दिस इज फाइल अपलोड कंट्रोल पेज है। कौन सा फाइल अपलोड कंट्रोल पेज? या तो ये वाला aspx पेज है, मैं दोनों पेज में उसको करके दिखा रही हूँ। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नो मैम। वेट, अच्छा वो बताया कब से नहीं दिख रहा है? जस्ट नाउ मैम। ओके ओके ओके, वेट, सॉरी ना, मुझे पता ही नहीं चला। नाउ इट्स विजिबल ना? ओके, यस। सो वी कैन नॉट रन दिस पेज, ओके। हम लोग उसको रन नहीं कर सकते। उसको रन किया तो ASP.NET का होम पेज आ रहा था, ओके। तो वी कैन नॉट रन ना। ये जो डिजाइनिंग है अभी हमको यूज करना है ये पेज में, कौन सा .aspx यूजर कंट्रोल .aspx पेज में हमको ये डिजाइनिंग चाहिए। जो हमने डिजाइनिंग बना के रखा है ना, वो डिजाइनिंग हमको चाहिए ये वाले पेज में। कौन सा पेज है? ASPX पेज। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, ये जो पेज है, ठीक है, ये जो पेज है इसमें हमारा सिर्फ इतना ही लिखा है, दिस इज AWP लेक्चर, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इसके सोर्स कोड में जाएंगे, ओके। तो दिस इज अ सोर्स कोड। नाउ इन दिस सोर्स कोड वी हैव टू रजिस्टर, ओके। हमको क्या करना है, रजिस्टर करना है। क्या रजिस्टर करना है? जो ये डिजाइनिंग हमने बना के रखा ना वेब यूजर कंट्रोल .aspx, वो हमको रजिस्टर करना है। तो हाउ टू रजिस्टर, व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर रजिस्टर? आपको रजिस्टर के लिए सिंटेक्स क्या है? तो रजिस्टर डायरेक्टिव यू हैव टू यूज। कौन सा डायरेक्टिव यूज करना है? रजिस्टर डायरेक्टिव। सी register, okay, this is the directive that you have to use. Register, okay, src source देना है, tag prefix देना है, okay, and उसका tag name. So 3 attributes you have to define in register directive as source, tag prefix and tag name, okay। तो now हम लोग इसको करते हैं। दिस इज आवर सोर्स कोड है, कौन सा है? ASPX पेज का सोर्स कोड है। नाउ वी आर रजिस्टर, ओके। यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करना है हमको। हाउ टू रजिस्टर, तो पहले ही, ओके, देन सी दिस इज द डायरेक्टिव्स पेज, पेज नहीं डायरेक्टिव्स, ओके। दिस इज अ पेज डायरेक्टिव, दिस इज अ रजिस्टर डायरेक्टिव्स। वी हैव ऑलरेडी रन दी डायरेक्टिव्स, ओके। हमने अलग अलग डायरेक्टिव्स देखा, ओके। So register किया, now we have to add source, okay, we have to add source equals to, okay, कौन सा source, कौन सा हमको source add करना है? this one, okay, this one source we have to add, which one? user control .aspx, okay, source equals to user control .aspx, okay। now second attribute क्या था? tag prefix, okay, tag prefix, this is the second attribute you have to add. what is the tag prefix? आपको जो भी देना है, okay, जैसे ASP होता है, ठीक है, ASP tag prefix है इन ASP.NET कंट्रोल्स के लिए। तो हम लोग जो भी आपको देना है UC दे दिया, यूजर कंट्रोल करके हमने एक tag prefix दे दिया, okay। then tag name,
टैग नेम. ओके, टैग नेम इक्वल्स टू, अब हमने जो डिजाइनिंग बनाया ठीक है उसको कुछ तो नेम देना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या नेम देते हैं, जो भी नेम आपको देना है, स्टूडेंट, कोई भी नेम यू कैन गिव हियर. ओके, स्टूडेंट करके, या तो जो भी आपको नेम देना है, तो यू कैन गिव द नेम. Yes, what is the error? What is syntax error? है क्या कुछ? Register element register is missing from start tag register. Wait. Yes, student rejoin. Okay, please rejoin करो. Rejoin करो. Please rejoin. At the rate लिखा ना हमने source tag prefix. ओके, एरर नहीं है. ओके, निकल गया. नो एरर इज रजिस्टर. क्या किया हमने, रजिस्टर. ओके, विच डायरेक्टिव वी हैव यूज्ड, रजिस्टर डायरेक्टिव. सोर्स दे दिया, सोर्स में क्या दिया कि जिसमें हमने डिजाइनिंग करके रखा था वो पेज का नेम, सी वेब यूजर कंट्रोल डॉट ASCX. टैग प्रीफिक्स, ठीक है, आपको जो भी टैग प्रीफिक्स जो भी नेम देना, यू कैन गिव द नेम एंड टैग नेम. जो भी हमने डिजाइनिंग किया वो दैट इज वन टैग बन गया. ठीक है, तो उसका नेम हमने दे दिया स्टूडेंट. नाउ वो टैग, वो डिजाइनिंग को वी हैव टू यूज इन आवर पेज. ओके,